हैं जहाँ पे हमें मल्टीकल्चरिज्म पे या ओवरसीज स्किल वर्कर पे हम रिलायंट हैं, तो अगर आप इतना माइग्रेशन कट करेंगे तो क्या वो सस्टेनेबल होगा? Up for their own campaign. And as the new policy finals are ramping up their push to cut migration, but some within the party are gearing up for their own campaign. And as the new policy fight kicks into gear, party elders are issuing words of warning. Wow. A voice from the Liberal backbench, front and centre. Narrow the gate for entry into this country. Let's get it done. Today, ये जो मिनिस्टर हैं वो लिबरल के मिनिस्टर हैं और वो बोल रहे हैं कि जो इमिग्रेशन के गेट्स हमें नैरो कर देने चाहिए, बहुत सारा इमिग्रेशन कम कर देना चाहिए। और रीजन क्या दे रहे हैं? Newspapers revealing WA MP Andrew Hastie has crowdfunded $260,000 to launch his own multimedia ad campaign to cut migration. Right. तो उन्होंने 2,60,000 रुपए कलेक्ट किए हैं, डॉलर सॉरी, 260,000 कलेक्ट किए हैं लोगों से, सिर्फ और सिर्फ एक चीज के लिए कि एंटी माइग्रेशन कैंपेन चलाने के लिए, कि माइग्रेशन का जो हो रहा है, जो उसको कट करना चाहिए, उसको कम करना चाहिए, ऐसा कैंपेन चलाने के लिए उन्होंने $2,60,000 इकट्ठा कर लिए हैं। और ये जो शैडो मिनिस्टर है वो क्या बताते हैं, सुनिए। Acknowledge the strength of his views in this regard, and he has every single right to do what he's doing. Now flagging changes in wake of the Bondi terror attack, increased visa screening and more power to cancel them. Where they're a citizen of Australia but also a citizen of another country, and they've engaged in that sort of anti-Semitic behaviour, we want the ability to take away their Australian citizenship. A former leader chipping in when John Howard है, he was ex-Prime Minister, और ये जो इतना सारा माइग्रेशन हम देख रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में, स्किल्ड माइग्रेशन, वो स्किल्ड माइग्रेशन को प्रमोट करने वाले, जब उनका टेनर था 2005 से 2008 तक का, उस टेनर में उन्होंने बहुत प्रमोट किया था और सही माइग्रेशन स्ट्रेटजी से बहुत अच्छे माइग्रेंट्स लेके आए थे। Now what he is saying, सुनिए जरा। Spoke to him last month. If you look as though you're losing control, the public will no longer support high immigration. Is the immigration policy working right now? No, it's not. I think it's too big. And the nation's longest-serving immigration minister. Skills are often needed for building homes. I don't think migration should be seen as a problem. It should be seen as part of the solution. Do you have any words of warning to your Liberal colleagues? It is absolutely essential that whatever measures you put in place, that they are absolutely non-discriminatory. The Coalition's migration policy was set to be released before Christmas, but the Bondi terror attack delayed it. Shadow Cabinet will be meeting in coming weeks to work out a timeline for the party's policy fight with the government. Our party has cut migration by 40% in 1 year. We want Australia to have a mature discussion about migration levels. What we're seeing from Andrew Hastie and the Coalition at the moment is an internal power play. John Howard keen to see his broad church united. The so-called division is exaggerated and manufactured by our enemies and foolishly adopted by too many members of the Liberal Party. You don't chop the pew in. Right. So, जो जॉन हावर्ड बात कर रहे हैं, बहुत ही संजीदा बात कर रहे हैं कि ये जो पहले पार्टी में इंटरनली प्रॉब्लम है, राइट। अब हो क्या रहा है, मैं आपको समझाता हूँ कि ये वीडियो क्या कह रहा है कि मेनली जो इमिग्रेशन पॉलिसी है, अभी लेबर गवर्नमेंट सत्ता में है, लेबर गवर्नमेंट ऑलरेडी बता रहा है कि माइग्रेशन का कर्व हम लेके नीचे आए हैं, जो कोविड में बहुत ऊपर चला गया था, बहुत ही पीक माइग्रेशन हो गया था, उसको हम 40% तक नीचे लेके आए हैं, नेट ओवरसीज माइग्रेशन को। अब नेट ओवरसीज माइग्रेशन में 40% का रिडक्शन, इट्स अ बिग नंबर, वो बड़ा नंबर है, राइट। अब लिबरल पार्टी कोई नया नंबर लेके आती है कि अब इसमें भी हम कटौती करेंगे, तब लिबरल पार्टी को जस्टिफाई करना पड़ेगा कि ऐसे ऑस्ट्रेलिया में हम रह रहे हैं जहां पे हमें मल्टीकल्चरिज्म पे या ओवरसीज स्किल वर्कर पे हम रिलायंट हैं, तो अगर आप इतना माइग्रेशन कट करेंगे तो क्या वो सस्टेनेबल होगा? उसका जवाब शायद लिबरल पार्टी के पास नहीं है, या फिर उनकी जो पॉलिसी बना रहे हैं उनके पास नहीं है। एंटीसेमेटिक बिहेवियर या एक दो इंसिडेंट को देख के पूरे कंट्री की माइग्रेशन पॉलिसी नहीं बनाई जा सकती, पूरे सारे सिनारियो को कि स्पेशली बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया को ध्यान में रख के ये पॉलिसी बनाई जाती है। और जॉन हावर्ड और जो पीटर रडॉक, जो दोनों सीनियर मेंबर हैं लिबरल पार्टी के, उन्होंने ही बताया कि अभी जो पार्टी में बातें चल रही है, जो डिस्कशन चल रहे हैं, that are not fruitful or not beneficial for the Australian migration industry. तो ऑस्ट्रेलियन माइग्रेशन इंडस्ट्री एक ऐसा पजल है जो
जो पार्टी सत्ता में है ना उनके लिए, या फिर जो सत्ता में नहीं है उनके लिए भी सबसे अच्छा माइग्रेशन आउटकम या फिर सबसे अच्छा माइग्रेंट कम्युनिटी के लिए या ऑस्ट्रेलिया के लिए अच्छा आउटकम क्या होगा, ये फिगर आउट करना बहुत ही मुश्किल काम है। इसी मुश्किल काम को शायद लेबर पार्टी हल करने का ट्राई कर रही है और नए चेंजेस लेके आ रही है, ऐसा हमें जानने को मिला है। लेकिन इतना ज़्यादा अभी हम उस पे फोकस नहीं कर सकते बिकॉज़ ये सारे जो अनाउंसमेंट हैं अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किए गए हैं। सभी इंडस्ट्री से जानने को मिल रहा है, न्यूज़ मिल रही है, ऐसी अफ़वाहें आ रही है, लेकिन लेबर पार्टी भी जो सत्ता में है वो भी कोई सॉलिड प्लान अभी जो उन्होंने बहुत सारे इन्विटेशन में माइग्रेशन बहुत ही रिड्यूस कर दिया है। 189 समझ लीजिए, 190 समझ लीजिए, 491 बहुत सारे कैंडिडेट्स जो हैं वो बहुत समय से वेट कर रहे हैं। स्पेशली 2-3 साल से जो लोग इस रेस में लगे हुए हैं, 2-3 साल से इन्विटेशंस नहीं है, स्पेशली हमारे ऑफशोर कैंडिडेट्स के लिए। तो इस रेस में अब प्रमोशन एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वीजा को मिल रहा है, वो भी एक अलग सा पजल है जहां वहां पे भी डिले हो रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में लेबर गवर्नमेंट के ऊपर जिम्मेवारी बहुत बड़ी है कि एक ऐसा सोल्यूशन लेके आए जो माइग्रेंट्स के लिए और एज इन कंट्री ऑस्ट्रेलिया के लिए, दोनों के लिए एक अच्छा आउटकम बने। लेकिन अभी जो गवर्नमेंट लगी हुई है, जो जिस सिचुएशंस में लगी हुई है, जिस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में लगी हुई है, उससे ऐसा लग रहा है कि माइग्रेशन के प्रति गवर्नमेंट का सीरियसनेस अगर देखा जाए तो इतना ज्यादा नहीं है। जो सीरियस काम होना चाहिए वो सीरियस काम नहीं हो रहा है। रिफ्यूजल्स आ रहे हैं, नंबर्स कम हो रहे हैं, लेकिन रिफ्यूजल अननेसेसरी रिफ्यूजल्स आ रहे हैं। इवन एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उनको भी रिफ्यूजल आ रहे हैं। सो दैट इज हैपनिंग राइट नाउ इन द करंट वर्ल्ड। सो 2026 में अगर ये अपने पीआर को आप सॉलिड करना चाहते हैं तो यस, हमारे लाइव सेशंस देखिएगा, आपके जो भी क्वेश्चंस हैं लेके आइएगा। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू हेल्प यू आउट। आपको सबसे ज्यादा ट्राई करेंगे हेल्प करने का, लेकिन उसके लिए प्लीज हमारा यूट्यूब मेंबरशिप ले लीजिएगा।